So we will go ahead with magnetic fields due to electric current. Last lecture में we have started with new chapter, that is magnetic fields due to electric current. And magnetic field start करने से पहले we have revised electrostatics, क्योंकि magnetic field due to electric current और electrostatics they are closely related topics. So just for a quick revision, what we have seen so far in the last session due to electric current. तो अगर आपको याद होगा, we started off by introducing this chapter first. So whenever charges move, they also generate what करते हैं? Charges in motion generate what? Magnetic fields. So whenever you have moving charges, मतलब electric current, they generate magnetic fields. And we have seen what is magnetic force on a moving electron. So we will today start with reintroduction of the concept of magnetic force. तो हमने कल ही देखा था कि suppose we have electron which is moving with some velocity v bar. अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है which is moving with velocity e bar, charge on electron is minus e. And if this moving electron, अगर ये एक external magnetic field में है, let us say we have external magnetic field V bar here. So the force acting on this moving electron is given by minus E V bar cross B bar. तो in simple language, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो रेस्ट पे है, and if it is in electric field, so force acting on the electron due to electric field is Q into E bar. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये देखा था, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट रेस्ट इज Q into E bar. इलेक्ट्रॉन होगा तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी minus E into E bar, where minus E is charge on electron. Similarly, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, now the electron is moving, so now the electron is moving and it is in an external electric field B. The force acting on this electron is given by, so force, what's the force? Magnetic force. तो हम magnetic force की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो to be very specific, we are talking about magnetic force here. Magnetic force acting on an electron with charge minus E, with charge minus E, with velocity v, with velocity v bar, with velocity v bar in an external field, in an external magnetic field v bar is, तो हमने कल ही देखा था फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज माइनस ई वी बार क्रॉस बी बार. इक्वेशन नंबर 1. तो इसका मतलब व्हाट डज दिस इक्वेशन टेल यू इज, अगर आपके पास एक चार्ज है और वो मूविंग है और वो एक्सटर्नल फील्ड में है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा. तो पॉइंट नंबर 1, चार्ज होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब पे फोर्स एक्ट होगा. अगर न्यूट्रॉन है तो उस पर फोर्स एक्ट नहीं होगा, बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, दे डोंट हैव एनी चार्ज. नंबर 2, चार्ज मोशन में होना चाहिए, अगर वेलोसिटी 0 है तो फोर्स 0 है. नंबर 3, फोर्स के लिए वहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी एसेंशियल है. तो अगर तीनों में से एक भी चीज नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल यू हैव न्यूट्रॉन विच इज मूविंग in an external field B, but neutron don't have charge, so force is 0. For example, you have electron in an external field but at rest. So उस केस में electron is at rest in an external field, the velocity is 0. Again, no force acts on it. या फिर suppose you have electron which is moving but there is no magnetic field, hence there is no magnetic force, right? So in general, हमने कल देखा था, in general, for any charge Q, the force acting on any charge Q in an external magnetic field
force due to magnetic field will be Q V bar cross V bar. Good. अब suppose imagine ये तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया. इक्वेशन नंबर 2 gives force due to magnetic field on a moving charge Q with velocity v in external magnetic field V. Imagine हमारे पास एक चार्ज है, वो मोशन में है, गुड. It is moving with velocity v, charge is q, there is external magnetic field b, yes. तो यहाँ पे फील्ड भी है, there is also electric field here. तो एडिशनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. तो आई कैन शो इलेक्ट्रिक फील्ड लेटर से लाइक दिस. तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज को सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं एंड वी कैलकुलेट व्हाट इज द फोर्स ऑन इट. तो व्हाट इज द फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड? Q into E bar. In case of magnetic force, charge is moving in external magnetic field with velocity v. Force is Q V bar cross V bar. But imagine there is a charge Q which is moving in external magnetic field as well as external electric field. तो अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होंगे तो इन दैट केस net force acting on the charge will be force due to electric field plus force due to magnetic field. तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा उसमें टर्म डाल दिया. इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हो, मैग्नेटिक के केस में हमने सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात की थी. अब हम बोल रहे हैं कि दोनों ही फील्ड है, देयर इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो दोनों फील्ड्स उस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे. तो नेट फोर्स इज force due to electric field plus force due to magnetic field. So if both electric and magnetic fields are present, then the net force on charge Q moving with velocity v is, so net force is electrostatic force plus magnetic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q into E bar, मैग्नेटिक फोर्स है Q V bar क्रॉस V bar. इक्वेशन नंबर 3. ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? लॉरेंट्ज फोर्स. सिर्फ फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सिर्फ फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड का होगा तो मैग्नेटिक फोर्स, दोनों होंगे तो लॉरेंट्ज फोर्स. तो दिस नेट फोर्स मतलब इक्वेशन नंबर 3, acting on the charged particle of force, acting on the particle is known as Lorentz force. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड इन अ वाइल. हमको साइक्लोट्रॉन सीखना है. व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? यू विल कम टू नो इन अ वाइल. तो उस केस में दोनों फोर्स अलग अलग काम करते हैं. मैंने कल बताया भी था, याद होगा तो. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन का काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड से पाथ को कर्व करने का काम करता है. तो दोनों मिलके दे एक्सेलरेट पार्टिकल टू वेरी हाई एनर्जी. हम देखेंगे कैसे. अब बाय द वे इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टर्म है, एज यू कैन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and it depends on the strength of electric field, whereas magnetic force is proportional to magnitude of charge and it is also proportional to cross product of V bar and V bar. So from equation 3, yeah, from Lorentz force, we see that electric force या electrostatic force depends on किस पे डिपेंड करेगा?
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्योंकि क्या था फोर्स Q इंटू ई, तो इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड 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 व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई बार, तो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, सिमिलरली फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, force due to magnetic field depends on, no, not really velocity only, depends on magnitude. Force due to magnetic field depends on what? अरे फोर्स क्या था, Q V बार क्रॉस B बार, तो किस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और क्रॉस प्रोडक्ट पे, किससे क्रॉस प्रोडक्ट पे, B और B के, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन magnitude of charge and cross product of V bar and B bar. Good. दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि V बार क्रॉस B बार मतलब आपको डायरेक्शन बताएगा ये, यहाँ तक क्लियर। तो लॉरेंट्ज फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, इट इज मूविंग इन सम स्पेस, और उस स्पेस में दो अलग अलग फील्ड है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों फील्ड्स फोर्स एक्सर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q इंटू ई, मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q V बार क्रॉस V बार। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स को लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं, एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। तो जो पहला टर्म है, इट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो दूसरा टर्म है, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V बार एंड V बार। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V बार एंड V बार है, this cross product of V bar and V bar, it represents which component, magnetic component। तो ये magnetic force है basically। तो there are two terms, एक force of electric field, दूसरा force of magnetic field। Then importantly, suppose electron is moving from left to right, तो ये आ गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि मोशन का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन। एंड सपोज यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड हियर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, सपोज वाई एक्सिस के अलाउंग, तो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट। अभी ये कमिंग आउट को वाई एक्सिस बोलो, जेड एक्सिस बोलो, आपकी मर्जी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 90 डिग्री पे नहीं है, दोनों में देयर इज सम एंगल थीटा हो सकता है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो V बार क्रॉस B बार, याद है क्या, A बार क्रॉस B बार, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A बार क्रॉस B बार, परपेंडिकुलर टू बोथ, किसको परपेंडिकुलर टू बोथ A बार एंड B बार। सपोज ये A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, राइट, या उल्टा भी ले सकते हो, इसको A बोल सकते हो, इसको B बोल सकते हो। ये A बार है, ये B बार है, या ये A बार है, ये B बार है, एक ही बात है। A बार क्रॉस B बार ये वेक्टर होता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब A बार को भी परपेंडिकुलर और B बार को भी परपेंडिकुलर, क्योंकि A बार एंड B बार दोनों एक ही प्लेन में है। इफ यू सी प्रॉपरली, A बार XY प्लेन में है, तो B बार भी XY प्लेन में है। तो A बार क्रॉस B बार कहाँ आएगा, Z एक्सिस के अलोंग। तो A बार B बार जिस प्लेन में होते हैं, A बार क्रॉस B बार उसको परपेंडिकुलर होता है। सपोज A बार एंड B बार ये XY प्लेन में है, तो A बार क्रॉस B बार कहाँ आएगा, Z एक्सिस के अलोंग। अगर A बार एंड B बार बोथ ऑफ देम आर इन XZ प्लेन, तो फिर A बार क्रॉस B बार कहाँ जाएगा, Y एक्सिस के अलोंग। अगर A बार एंड B बार ये YZ प्लेन में है, तो A बार क्रॉस B बार कहाँ जाएगा, X एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग।
तो ये पता होना चाहिए आपको। नो, ये ए बार क्रॉस बी बार की जगह पे वी बार क्रॉस बी बार, तो वी बार क्रॉस बी बार है, तो उसका रिजल्टेंट होगा या तो ऊपर परपेंडिकुलर टू बोथ या तो फिर नीचे। तो एनीवेज आई जस्ट शो अप फॉर द टाइम बिंग। तो ये आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ वी बार क्रॉस बी बार। करेक्ट, ना क्लियर। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या था? मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन क्या था? Q into V bar क्रॉस V bar, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, कभी सुना है क्या? चार्ज इज 10 कूलम आई कैप, 20 कूलम जे कैप, सुना है ऐसा? तो चार्ज क्या है? स्केलर है, राइट? तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज Q V bar क्रॉस V bar। मतलब फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो V bar क्रॉस V bar का होगा। और वी बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन क्या है? वी बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन मतलब फोर्स का डायरेक्शन। वी बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू बोथ वी बार एंड बी बार। यहाँ तक क्लियर? वी बार बी वेक्टर, वी बार बी वेक्टर, इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है वी बार क्रॉस बी बार। लेकिन फोर्स क्या था? फोर्स था क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार। तो जो डायरेक्शन वी बार क्रॉस बी बार का है वही डायरेक्शन किसका है? फोर्स का। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि यहाँ पे अगर डायरेक्शन नहीं समझ में आएगा तो आगे के टॉपिक कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई वेक्टर्स का बेसिक स्टडी सिंपल। वी बी जिस प्लेन में है उसको फोर्स परपेंडिकुलर है, डन। इसका मतलब ये भी होता है कि फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर, करेक्ट? तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, देयरफॉर what we can say is, we know that, अभी बताया मैंने, we know that v bar cross b bar is perpendicular, v bar cross b bar is perpendicular to the plane containing both, v bar and b bar, right? Therefore magnetic force is also perpendicular to the plane containing v bar and b bar, to the plane containing v bar and b bar। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स बी बार को भी परपेंडिकुलर है और बी बार को भी परपेंडिकुलर है। यू नो व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स? व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार? ए बी cos थीटा। अगर दो वेक्टर्स में एंगल 90 हो, if the angle between two vectors is 90, so what is a bar dot b bar then? 0। मतलब ab cos 90 is 0। गुड। तो नाउ सिमिलरली देखो वैसा है, फोर्स हो गया वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी वेक्टर विल बी 0। व्हाई? बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर। डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, cos ऑफ थीटा। बट हियर ये जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन, किस किस में एंगल है ये? एंगल बिटवीन में थीटा वन बोल देता हूँ। थीटा वन इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड देयरफॉर एफ एन डॉट वी इक्वल टू 0। क्लियर? गुड। अब why are we finding out dot product of force and velocity? मैंने कल आपको बताया था, मोशन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो उस डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हाउ डू यू डिफाइन वेलोसिटी? v बार इक्वल टू dx बार बाय dt। हमने वेक्टर्स में सीखा था कि जब आप a बार इक्वल टू b बार या
एन बी बार लिखते हो, इसका मतलब ए बार और बी बार इसका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो आप जब वी बार इक्वल टू डी एक्स बार बाई डी टी बार लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन एक्स का है वो डायरेक्शन वी का है, राइट? एंड देन हाउ डू राइट डाउन एक्सेलरेशन? dv बार बाय dt बार। इसका मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वो डायरेक्शन ए का होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। दो केसेस बनते हैं। क्यों दो केसेस बनते हैं? क्योंकि व्हाट इज dv? dv इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, dt इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इमेजिन इमेजिन आप गाड़ी चला रहे थे और आपने सडनली वेलोसिटी बढ़ा दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कम था, फाइनल ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल विल बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट? तो ये पॉजिटिव आएगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव, टाइम तो पॉजिटिव ही होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इज नेगेटिव, वो तो नहीं हो सकता, टाइम आगे ही बढ़ता है ना। अभी अगर 6:30 हुए तो 1 घंटे का 7:30 ही होगा, 5:30 नहीं होने वाला वो। टाइम डजंट गो बैक इन रिवर्स डायरेक्शन में जाता नहीं है ना वो। तो न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी बढ़ गया तो ये पॉजिटिव, अगर आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो वेलोसिटी कम होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी लेस देन इनिशियल। तो उस केस में न्यूमरेटर विल बी नेगेटिव, तो ए विल बी नेगेटिव, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के दो डायरेक्शन है, एक है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग डिस्प्लेसमेंट। गुड, तो ये याद रखो आप, रिमेंबर दिस। तो इसका मतलब ये कि हमने जो लास्ट पॉइंट लिखा है एफ एम बार डॉट वी बार इक्वल टू 0, बट वी बार और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो बट वी बार एंड डिस्प्लेसमेंट बार हैज सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब एफ एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स, बराबर। अगर फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट को भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? सेम है। देयरफॉर इसका मतलब क्या होता है? एफ एम बार डॉट एक्स बार इज इक्वल टू 0। बट व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? वर्क डन। लेकिन ये फोर्स कौन से फील्ड का है, इलेक्ट्रिक की मैग्नेटिक? मैग्नेटिक। देयरफॉर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज 0। मतलब चार्ज पार्टिकल को मूव करना या चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ाना, ये काम मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इंक्रीज द स्पीड और डज नॉट ब्रिंग द पार्टिकल इनटू मोशन, राइट? देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क, मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क। अब अगर वो वर्क डन नहीं कर रहा है तो उसका फिर काम ही क्या है? फिर वहां पे व्हाई शुड वी हैव मैग्नेटिक फील्ड? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे फिर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है चार्ज को एक्सेलरेट करना। कैसे? एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। सपोज मेरे पास दो प्लेट्स थे, इमेजिन इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इसको माइनस बोल दिया, इसको प्लस बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया मैंने। एग्जाम्पल 100 वोल्ट का लगा दिया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रख दिया मैंने विच इज एट रेस्ट। रेस्ट क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन का? क्या होगा? पहले रेस्ट में था इलेक्ट्रॉन, अब मैंने यहाँ पे दो प्लेट रख दी, एक को माइनस कर दिया, एक को प्लस कर दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। तो मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग। पहले कहाँ था? रेस्ट पे था, अभी क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वर्क डन किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्सेलरेशन का काम करता है, और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कर्वेचर देने का काम करता है। कर्वेचर मतलब पाथ को कर्व करना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले स्ट्रेट जा रहा था, मैंने लगा दिया परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन वाज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैंने अलोंग अलोंग वाई एक्सिस या जेड एक्सिस एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जा रहा था इट विल स्टार्ट मूविंग इन सर्कल्स नाउ। तो मैग्नेटिक फील्ड does no work, but magnetic field curves the path of the moving charged particle. Therefore, magnetic field curves the moving charged particle. It curves the path of course, the path of moving charge particle. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो दो फील्ड एक साथ अगर लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? एक्सेलरेशन। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया? कर्वेचर, मतलब पाथ को कर्व करने का काम किया। तो अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट, तो सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ किसने किया? मैग्नेटिक फील्ड ने। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स एसेंशियल होता है? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया? मैग्नेटिक फील्ड ने, राइट। तो ये अगले टॉपिक में देखेंगे हम। नाउ बिफोर वी गो टू नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब जब आप एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करोगे तब तब उसका एसआई यूनिट और डायमेंशन फाइंड कर लेना। अब फोर्स तो पता ही है हमको, फोर्स है m1L1T-2 मेजर्ड इन न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है एज फार एज 12th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, तो इसका हमको ऐसा यूनिट भी चाहिए, इसका हमको डायमेंशन भी चाहिए। तो हमको ऑलरेडी पता है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है क्यू वी बार क्रॉस वी बार। देन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो क्यू वी बार क्रॉस वी बार इज वी बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है इसके लिए। इमेजिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये अगर दोनों परपेंडिकुलर हुए, मतलब एंगल कितना है? 90। तो लेट थीटा इक्वल टू 90, देयरफॉर फोर्स का मैग्नीट्यूड will be equal to QVB sin 90. What is sin 90? 1, right? तो फोर्स क्या मिल जाएगा आपको? फोर्स मिल जाएगा सिर्फ QVB। हमारा इंटरेस्ट था इन फाइंडिंग आउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ B, तो इट इज FM अपॉन QV, राइट। F मतलब न्यूटन, Q मतलब कूलम, V मतलब मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर जाएगा ये न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, राइट। इसी को बोलते हो टेस्ला, राइट। दिस इज कॉल्ड एज टेस्ला। तो ये जो यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर इज नोन एज टेस्ला। गुड। आगे जाके देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में कि इसी टेस्ला को बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। वो इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स होता है, और बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक ठीक, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर इज कॉल्ड एज टेस्ला। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? तो अभी डायमेंशंस कैसे फाइंड करेंगे? फिर डायमेंशन फाइंड करना तो इट इज इवन सिंपलर, क्योंकि डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो फोर्स के डायमेंशंस पता होने चाहिए, चार्ज के डायमेंशंस पता होने चाहिए, वेलोसिटी के डायमेंशंस पता होने चाहिए। फोर्स का डायमेंशन होता है m1L1T-2, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, करंट होता है एम्पियर A⁻1 T⁻1, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड L1T-1, राइट। क्लियर? T +1 -1 डिनोमिनेटर से गायब, L1 गायब, ये जो A1 डिनोमिनेटर में था वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आएगा m1A-1T-2। ऐसा क्लियर? तो दिस आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट, क्योंकि हम यहाँ पे वही देख रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट।
तो वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट आना चाहिए डायमेंशंस में है, दैट इज राइट। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन मोशन, और उसके बाद हम सीखेंगे साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। तो साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन मोशन मतलब सर्कुलर मोशन बेसिकली। और आपने शायद सुना होगा बहुत साल पहले यूरोप में कहीं तो एक पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाया था विच कैन बेसिकली स्टडी द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। मतलब करते क्या है बेसिकली, ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज में जाऊंगा नहीं मैं, तो सिंपल लैंग्वेज, यूनिवर्स जब बना था तब उस टाइम पे क्या कंडीशंस रही होगी वो स्टडी करने के लिए हमको हमको हाई एनर्जी पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करवाना होता है। कितना हाई? मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो द पार्टिकल्स आर मूविंग एट वेरी 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 हाई स्पीड, अराउंड 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड। इतना हाई पार्टिकल का स्पीड है। कौन सा पार्टिकल का? चार्ज पार्टिकल्स का, राइट। तो जब वेरी हाई स्पीड पार्टिकल्स को हम कोलाइड करेंगे तो उस एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट होगा इट कैन टेल अस इनिशियल कंडीशंस ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि इनिशियली जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ तब बेसिकली एटम्स नहीं थे, यू हैड ओनली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन अलग था, इलेक्ट्रॉन अलग था, बाद में कंबाइन हुए एटम बना, बाद में न्यूट्रॉन बने, बाद में हाइड्रोजन से हीलियम बना, हीलियम से हायर एलिमेंट बना, लिथियम एक्सेट्रा ऑक्सीजन मेटल, वो सब बात। अब क्वेश्चन ये है कि इतना हाई एनर्जी मतलब इतना हाई वेलोसिटी, एनर्जी एंड वेलोसिटी रिलेटेड ना। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल? हाफ एम वी स्क्वायर। अभी मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, प्रोटॉन हो तो मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन हो तो मास कांस्टेंट है। मतलब पार्टिकल का हाई एनर्जी कहाँ से आएगा? वेलोसिटी से आएगा। मतलब मुझे पार्टिकल को वेरी हाई वेलोसिटी पे लेके जाना है, वेरी हाई 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड। कैसे करोगे? कैसे करेंगे? नॉट सिंपल ना कि फेंक के मारा हो गया, पार्टिकल उठाया फेंक के मारा 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो सिंपल सा बॉलर भी बॉलिंग करता है तो 150 किलोमीटर पर आवर तक ही जाता है। व्हाट इज 150 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड? 150 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? व्हाट बाय व्हाट? भूल गए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर में 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। कैंसल 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 कैंसल। 10/36। व्हाट इज 10/36? 10/36 कितना होता है? 5/18। कितना? 5/18। हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? एडिंग का टेबल बता, एडिंग का टेबल। व्हाट इज 18 एग्जा? 144। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं स्पीड को 150 नहीं, मैं 144 मान लेता हूँ। ठीक है 144, काम आसान होता है ना, ठीक है। 1 एंड 8, व्हाट इज 8 5 40। 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है वो। तो फास्ट बॉलर इतना फास्ट बॉलिंग करता है, कितना स्पीड मिलता है? 40 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ 40। हमको पार्टिकल का स्पीड कितना चाहिए? 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड। नंबर वन, पार्टिकल ऐसा नहीं बॉल जैसा कि उठाया और फेंक दिया, तो वेरी स्मॉल पार्टिकल। यू कैनॉट टेक वन इलेक्ट्रॉन, हाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक प्रोटॉन है, ऐसा तो हो नहीं सकता। गुड। तो हम लोगों को डिवाइस बनाना पड़ेगा, वी हैव टू मेक सम इंस्ट्रूमेंट, सम सोफिस्टिकेटेड हाईली कॉम्प्लेक्स मशीन जो पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेगा टू वेरी हाई वेलोसिटी, राइट। और वो जो मोशन है दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन मोशन। तो साइक्लोट्रॉन मोशन में सबसे पहले रिमेंबर, यहाँ पे साइक्लोट्रॉन मोशन में दोनों ही फील्ड्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है एक्सेलरेशन का, मैग्नेटिक फील्ड का काम है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने का। सर्कुलर मोशन मतलब साइक्लिक होता है वो, साइक्लिक होता है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ,
कुछ टाइम के बाद वापस उस पॉइंट पे आया, फिर सेम टाइम के बाद उसी पॉइंट पे आया, फिर उसके बाद वापस से वहीं पे आया, इसको क्या बोलते हैं, साइकिल। तो साइक्लोट्रॉन मोशन मतलब रिपीटेशन ऑफ मोशन, पीरियोडिक मोशन है ये। जस्ट लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पीरियोडिक मोशन, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन। साइक्लोट्रॉन मोशन इज पीरियोडिक मोशन, इट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर शेप देना पाथ को किसने किया था? मैग्नेटिक फील्ड ने। तो सबसे पहले हम साइक्लोट्रॉन मोशन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड को लाएंगे। तो अब बिफोर आई स्टार्ट दिस, आपको पता होना चाहिए डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन। यू नो व्हाट इज डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन? सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस बोर्ड से बाहर आ रहा है, मतलब जो ऑनलाइन हो आपके मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आ रहा है, करेक्ट? राइट। तो हम इमेजिन करते हैं एरो, तीर। मतलब अगर सपोज सपोज तीर ये बोर्ड के बाहर आएगा, एरो इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड। हाउ डज अ एरो लुक लाइक? एरो दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है एरो। और पीछे क्या होता है इसके? समथिंग लाइक दिस होता है, ऐसा होता है ना ऐसा। तो अगर एरो मेरे पास आ रहा है, एरो आपके पास आ रहा है, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा एरो का टिप। क्या दिखेगा? एरो का टिप। तो इस टिप को बोलते हैं डॉट। मतलब इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स यू, इफ इट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस प्लेन ऑफ बोर्ड, व्हाट यू विल सी इज ओनली टिप पॉइंट। उसको बोलते हैं डॉट कन्वेंशन। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड के बाहर निकल रहा होगा, बुक के बाहर आ रहा होगा, तो आप डिनोट करोगे डॉट से। और अगर वो अंदर जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा, तो आपको तीर का पिछला पीछे का साइड दिखेगा। पीछे का साइड दिखता है क्रॉस जैसा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो हम डिनोट करेंगे क्रॉस से, और अगर बाहर आ रहा है तो डिनोट करेंगे डॉट से। इसको बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन। तो डॉट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डॉट रिप्रेजेंट्स अ फील्ड कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड, एंड क्रॉस रिप्रेजेंट्स अ फील्ड गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। यहाँ तक क्लियर? गुड, पक्का। देन सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल है, और इट इज मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये ऐसा जा रहा था, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन था फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर मैं इसको z एक्सिस मानता हूं तो वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है which is which is dot. What is the meaning of dot? Coming out. अगर मैंने यहाँ दिखाया होता क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन, इनसाइड। चैप्टर नंबर 2 11th स्टैंडर्ड, ए बार क्रॉस बी बार वेक्टर प्रोडक्ट, तो पता होना चाहिए आपको। हमारे पास अगर दो वेक्टर है, यहाँ पे दो वेक्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर जा रहा है, एक वेलोसिटी वेक्टर है, और हमको पता है मैग्नेटिक फोर्स होता है वी बार क्रॉस बी बार। तो मैंने बताया था आपको कि अगर दो वेक्टर है तो मैं डायरेक्शन आपको बाद में बताऊंगा। तो नाउ इट इज टाइम टू टेल यू द डायरेक्शन। सपोज ये बी बार है, सपोज ये ए बार है, तो यू हैव टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। दोनों में एंगल थीटा है। मुझे ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन बताना है। तो दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं। कौन से दो? परपेंडिकुलर है, करेक्ट, परपेंडिकुलर है, गुड। लेकिन परपेंडिकुलर तो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है ना, राइट? करेक्ट। अभी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर। तो परपेंडिकुलर भी दो डायरेक्शन है, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो एग्जैक्टली exactly कौन सा डायरेक्शन? मैग्नेटिक फोर्सेस का ये स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं इसके, तो डायरेक्शंस पता होने चाहिए। तो दैट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। कल हमने कौन सा रूल सीखा था? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में हमको मिलता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड नहीं करते, हम फाइंड करते डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रूल क्या था? इमेजिन wire to be held in your right hand such that the thumb is outstretched and fingers are curled around. Correct? If thumb represents direction of current, curled fingers give you direction of magnetic field. So right hand thumb rule has nothing to do with direction of force.
क्योंकि फोर्स में वी बार क्रॉस बी बार करते हो, मतलब आपको ऑलरेडी बी का डायरेक्शन पता है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल, अभी राइट हैंड स्क्रू रूल इंडिया में, रशिया जाओगे तो वहां पे उल्टा सिस्टम है, तो वो छोड़ दो, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। तो राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब, सपोज मुझे स्क्रू टाइट करना है, यू वांट टू फिक्स अ स्क्रू, उसको टाइट करना है, लूज नहीं करना, टाइट करना है, तो क्या करते हो, क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, क्लॉकवाइज करते हो ना, करेक्ट। अगर आप कोई चीज रशिया से खरीद के लाओगे, उल्टा सिस्टम है, वहां पे क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो स्क्रू बाहर आ जाएगा, वहां पे सिस्टम उल्टा होता है, उसके आटे बोलते हो जिसको आप, वो उल्टे होते हैं वहां पे। और अगर आपको स्क्रू को लूज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब इमेजिन, राइट हैंड, दो फिंगर छोड़ दो, आपके जो तीन फिंगर है, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, इन तीनों को परपेंडिकुलर करो। थंब रिप्रेजेंट्स वन वेक्टर, मे बी ए बार, index finger represent second vector, that is b bar, and this middle finger gives you direction of resultant. तो अगर आप a बार क्रॉस b बार कर रहे हो, मतलब आप थंब को कहाँ लेके जा रहे हो, इंडेक्स फिंगर, तो a बार क्रॉस b बार, राइट, रिजल्टेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर। तो a बार क्रॉस b बार उल्टा करोगे, b बार क्रॉस a बार करोगे, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल बी अपोजिट, करेक्ट। तो रिमेंबर दिस, a बार, ए बार कौन था, थंब, बी बार कौन है, इंडेक्स फिंगर, तो ए बार क्रॉस बी बार इज द डायरेक्शन ऑफ मिडल फिंगर, रिजल्टेंट। बी बार क्रॉस ए बार इज अपोजिट टू द मिडल फिंगर, पीछे के डायरेक्शन में। यहां तक क्लियर? नाउ लुक, ए बार बी बार, इसको हटाओ यहां से, लेट अस राइट डाउन इंस्टेड, वी बार एंड बी बार, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना, वी बार क्रॉस बी बार। तो रूल क्या था, ए और बी, ए और बी, ए इज थंब, बी इज इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। थंब, वी बार मतलब ए बार बना दिया, तो ये क्या आ गया, ये कौन सा डायरेक्शन है, थंब मतलब वी बार, करेक्ट। इमेजिन वी बार, दिस इज वी बार, दिस इज बी बार, so resultant is middle finger, v bar cross b bar, v bar cross b bar, thumb v bar, index finger b bar, v bar cross b bar, direction is this, b bar cross v bar, उल्टा डायरेक्शन। फोर्स में v बार क्रॉस b बार था कि b बार क्रॉस v बार था, v बार क्रॉस b बार, वेरी गुड। नाउ अगर आप वैसा लॉजिकली देखोगे तो दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, एक मिलेगा v बार क्रॉस b बार, एक मिलेगा b बार क्रॉस v बार, तो ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। यहाँ पे आ जाओ आप, ये क्रॉस किसका क्रॉस है, किसका क्रॉस है ये, मैग्नेटिक फील्ड का, V, V, V is thumb, right? Correct. V is thumb. B is index finger. तो V ऊपर की तरफ, इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ, क्योंकि क्रॉस लिखा ना, डॉट करते तो कैसा आता, बाहर की तरफ, राइट। और ये जो मिडल फिंगर है, इट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लुक, थंब, थंब इज, ध्यान दो यहाँ पे, इट इज नॉट टाइम पास, थंब बताओ, थंब इज, इट इज वी बार, और इंडेक्स फिंगर इज गोइंग इनसाइड, इट इज बी बार, तो मिडल फिंगर कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरे तरफ पॉइंट कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, टू द लेफ्ट। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू द लेफ्ट। ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा होता, मतलब डॉट ड्रॉ करता, मैं यहाँ पे डॉट दिखाता, तो फोर्स कहाँ होता, टू द राइट। So that is how you find out direction. यहाँ तक क्लियर? अब इमेजिन हमारे पास एक पार्टिकल था जो इस P पॉइंट पे है, तो पार्टिकल इज एट P पॉइंट, बराबर। फोर्स का डायरेक्शन क्या है, टू द लेफ्ट, तो पार्टिकल कंटिन्यूअसली कहाँ अट्रैक्ट होगा, टू द लेफ्ट, थोड़ा सा और आगे चला गया, राइट। तो यू रिमेंबर सर्कुलर मोशन, डू यू रिमेंबर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज टेंजेंट एट एवरी पॉइंट, तो यहाँ पे अगर आया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया,
राइट, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो अभी फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा। फोर्स कहाँ पे आएगा वापस, अबाउट दिस पॉइंट, तो फोर्स का डायरेक्शन वापस से ये आएगा। अब पार्टिकल थोड़ा और आगे गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज, तो पार्टिकल का डायरेक्शन भी चेंज, क्योंकि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी चेंज होना। अब इस पॉइंट पे आने के बाद, आफ्टर कमिंग एट दिस पॉइंट, velocity is again tangent, so velocity is tangent here, correct, velocity का डायरेक्शन। देन मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी अंदर है, राइट, तो फोर्स का डायरेक्शन हो गया चेंज, फोर्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेंटर। तो अगर आप ऐसा कनेक्ट करते जाओगे तो यू विल फाइंड इट इज सर्कुलर मोशन, करेक्ट यहाँ तक। तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड ने पार्टिकल के पाथ को क्या कर दिया, सर्कल, राइट। सो द आइडिया हियर इज at any point velocity is tangent, and at any point magnetic field is going inside, and at any point force is always directed towards the center। तो ये आ गया फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यही डायग्राम मैंने बुक में बताया है, नोट्स में है, मतलब यहाँ तक क्लियर। तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट किससे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो नाउ लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अभी यहाँ पे भी बी केयरफुल, क्योंकि क्रॉस दो जगह पे यूज होता है। एक एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग z एक्सिस, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो डज इट लुक लाइक क्रॉस, तो उसको भी बोलते हैं क्रॉस फील्ड। तो क्रॉस फील्ड, अगर दोनों फील्ड हो, इलेक्ट्रिक भी हो मैग्नेटिक भी हो, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, और डॉट हो तो इसका मतलब डायरेक्शन इज आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। यहाँ तक क्लियर। तो गोइंग बैक टू साइक्लोट्रॉन मोशन, सो लेट अस consider a charged particle having charge q, इसलिए 11th के बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। having charge q moving with velocity v bar in an external magnetic field b bar directed, कहाँ है डायरेक्शन फील्ड का, इनसाइड, डायरेक्टेड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो प्लेन ऑफ बोर्ड, आप पेपर पे लिखोगे तो प्लेन ऑफ पेपर, सिंपल, राइट। क्लियर। The direction of magnetic force is given by right hand screw rule. The direction of magnetic force, is given by right hand screw rule. Which is क्या डायरेक्शन था, towards the center of circle, which is towards the center of circle. Thus magnetic force is directed towards, क्या डायरेक्शन है, is directed towards center of circle, and hence जो भी फोर्स सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ हो वो क्या प्रोवाइड करता है,
centripetal force, and hence provides centripetal force, provides necessary centripetal force. ओके तो नोट्स में मैंने यही लिखा है, थोड़ा सा लैंग्वेज वहां पे चेंज है, बाकी सब ठीक. यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस ऑल्सो, दिस इज सेम थिंग. क्लियर? मैग्नीट्यूड वाइज force due to magnetic field is providing which force? Centripetal force. Magnitude wise. Good. Then what is magnitude of magnetic force? What is magnetic force? Q V bar cross V bar, मतलब Q V B sin theta. What was theta? Angle between velocity and magnetic field. बराबर ना? V bar cross V bar, A bar cross B bar लिखते हो तो थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन A एंड B. तो V bar cross B bar लिख रहे हो तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन B एंड B. तो अब ये देखो, V था along z axis, B जा रहा है अंदर. व्हाट इज एंगल? 90 डिग्री. इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट? एंगल कितना है दोनों में? 90 डिग्री. तो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्टली लिख दो, नहीं तो फिर लिखो साइन थीटा भी लिखो साथ में, डजंट मैटर रियली. तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इज क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल टू, यू रिमेंबर व्हाट इज सेंट्रिपेटल फोर्स? mv square by r, mv square by r, where r is the radius of circular motion. तो ये जो सर्कल था इसका रेडियस है कैपिटल R. ओके, देन but B bar is perpendicular to B bar, therefore angle theta is 90, therefore QVB equal to mv square by r. Equation number 1, V cancel, V cancel, तो क्या आ जाएगा? QB, और ये R को वहां शिफ्ट कर दिया तो QB आर इक्वल टू mv, लेकिन मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम. व्हाट इज m इंटू v? मोमेंटम. इट इज नॉट फोर्स, दैट इज m इंटू a. फोर्स इज m इंटू a, m इंटू v इज मोमेंटम. इक्वेशन नंबर 2, एंड since mv equal to momentum, therefore qb are equal to momentum. Equation number 3. Equation number 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन इक्वेशन. तो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आर नोन एज साइक्लोट्रॉन इक्वेशन. इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आर नोन एज साइक्लोट्रॉन इक्वेशन. साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला भी बोलते हो इसको. साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला ऑफ साइक्लोट्रॉन इक्वेशन. यहाँ तक क्लियर? गुड. देन अब कमिंग टू द पॉइंट, हमें बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना था. अभी तक हमने एक्सेलरेशन की बात ही नहीं की. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में कैसे सेट करना है. अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा था एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में विद सम वेलोसिटी v, हमने क्या किया? हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया. पार्टिकल का मोशन था अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस. तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने मैग्नेटिक फील्ड या तो अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस लगा दिया, राइट? तो उससे स्पीड तो चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, लेकिन स्पीड चेंज हुआ क्या? नहीं. तो हुआ क्या? सपोज थोड़ा सा मैं ग्राफिकली दिखाता हूँ तो ज्यादा समझेगा. सपोज यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास था एक इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन पहले स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आया क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो. करेक्ट. इलेक्ट्रॉन वाज गोइंग स्ट्रेट, एन इलेक्ट्रॉन वाज गोइंग स्ट्रेट, but as soon as it enters a region of external magnetic field, its path becomes circle. Good. लेकिन there is no change in speed. Velocity का direction change हुआ? Yes. क्योंकि अब velocity is tangent at every point. पहले velocity क्या था? Along x-axis. मतलब पहले velocity was directed along a straight line. जैसे ही यहाँ पे आया,
वेलोसिटी इज चेंजिंग डायरेक्शन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट एट एवरी पॉइंट। बट अभी तक हम लोगों ने इसका एक्सेलरेशन नहीं किया। अब एक्सेलरेशन कैसे करते हो, उसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। तो अगर आपको एक्सेलरेशन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना तो होगा नहीं, करेक्ट। मतलब साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में सबसे पहले इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर विच इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल बोलना जरूरी है, यू कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रॉन्स, कितना भी फील्ड लगा तो कुछ नहीं होगा उसको, ओके। तो cyclotron accelerator is a particle accelerator which is used to accelerate charged particles to very high velocities and very high energies। कितना एनर्जी, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके लिए क्या करते हैं फिर हम, उसके लिए हम दोनों फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाते हैं। सबसे पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि इसमें दो डी शेप के सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर डी शेप के हॉलो मेटालिक डिस्क है, हॉलो मेटालिक डिस्क। रिमेंबर हॉलो वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर। व्हाई हॉलो बताता हूँ, ओके। ये एक डी शेप है और एक दूसरा डी शेप भी है। तो यू हैव टू डी शेप्स, हॉलो मेटालिक डिस्क। इसका एक को डी वन बोलेंगे, एक को बोलेंगे डी टू, दोनों को साथ में मिलके बोलते हैं डीज। क्या बोलते हैं, डीज। मतलब डीज मतलब एक्चुअली प्लूरल, प्लूरल डी है ये। हाँ, तो डीज, डी एस मतलब डीज। तो दोनों दे आर कॉल्ड एज डीज। ये हॉलो है, हॉलो, हॉलो मतलब अंदर से फोकल, एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। व्हाई, व्हाई बिकॉज पार्टिकल को अंदर भेजना है। अगर ये फोकल नहीं हुआ, अगर ये सॉलिड हुआ, हॉलो नहीं हुआ, सॉलिड हुआ, पार्टिकल जाएगा नहीं अंदर। तो पार्टिकल को अंदर भेजना है तो पहले तो पार्टिकल लाओ, कहाँ से लाएंगे पार्टिकल। पार्टिकल लाने के लिए हमको यहाँ पे एक पार्टिकल का सोर्स रखना पड़ेगा। दिस इज सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव भी रख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के सोर्स को रखते हैं। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज हीलियम एटम, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, टू प्रोटॉन्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को वहां से भगा दो, दो इलेक्ट्रॉन को भगा दो, क्या बचा, न्यूक्लियस बचा। हीलियम में दो ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को हटा दिया, पॉजिटिव आयन बन गया वो, राइट। दोनों इलेक्ट्रॉन को भगा दिया तो क्या बचा, फिर न्यूक्लियस बचा। तो हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हो, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल में चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। तो ये सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब बेसिकली अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। कौन सा सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स है। रेडियो एक्टिविटी अब सीखोगे आगे जाके। अनस्टेबल न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक यूरेनियम थोरियम जैसा कोई मटेरियल लगा दिया, एग्जैक्टली कौन सा वो बाद में सीखेंगे, रेडियो एक्टिव है। ये क्या इमिट करेगा, पॉजिटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने अभी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो एक्सीलरेट होगा ना, बराबर। ये डी तो लगा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो एक्सीलरेशन होगा क्या इसका, नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसको एक अल्टरनेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग सोर्स लगाते हो। और ये जो बीच में मैंने ऐसा एस जैसा कुछ दिखाया, इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग सोर्स। वो भी सीखोगे आगे जाके एसी करंट में। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग, सी द आइडिया इज कि जब आप दो प्लेट यूज करते हो, आप एक प्लेट को पॉजिटिव रखते हो, एक को नेगेटिव रखते हो। इसका पोलैरिटी फिक्स है। पोलैरिटी फिक्स होना मतलब एक प्लेट अभी पॉजिटिव, एक घंटे के बाद भी पॉजिटिव। जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वोल्टेज, एसीडीसी, राइट। तो यहाँ पे प्लेट्स का पोलैरिटी चेंज नहीं होता। सपोज मैंने ऐसा कुछ किया, प्लस माइनस, फिर ये बाद में प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग, राइट, करेक्ट। तो ये जो टिल्डा, टिल्डा बोलते हैं इसको, जो टिल्डा साइन होता है ना, इसका मतलब ये सोर्स कौन सा है, अल्टरनेटिंग है। मतलब क्या, D1 अभी पॉजिटिव है, D2 नेगेटिव है, तो बाद में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, बार बार चेंज होगा। और ये हाई फ्रिक्वेंसी है। कितना फ्रिक्वेंसी है, लगभग 10 मिलियन। हाउ मच इज 1 मिलियन,
10 पावर 6, तो 10 मिलियन कितना, 10 पावर 7। 10 पावर 7 हर्ट्ज, एक सेकेंड में 10 मिलियन बार उसका पोलरिटी चेंज होता है, एक सेकेंड में। एक सेकेंड में 10 मिलियन टाइम्स, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक सेकेंड में कितनी बार, 10 पावर 7 टाइम्स। तो पहले प्लस था, वो माइनस था, फिर प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो हाईली अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो हाई वोल्टेज। कितना हाई वोल्टेज, तो 10,000 वोल्ट के आसपास लगाते हैं हम लोग, 10,000 वोल्ट। हमारे घर में 220 230 आता है, उसमें भी हम जाते हैं काम से, गलती से टच हो गया तो वह, वो 10,000 वोल्ट है वो। राइट, अब क्यों किया है ऐसा, क्योंकि पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है। जैसे पार्टिकल यहाँ से इमिट हुआ, जैसे ही पार्टिकल यहाँ से इमिट हुआ, कहाँ जाएगा बेचारा, कुछ पता नहीं। राइट, तो वो देखेगा D1 पॉजिटिव है, D2 नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव हूं ना, मैं नेगेटिव की तरफ जाऊंगा, तो ये गया इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, उसको एक्सेलरेट किया। लेकिन मोशन क्या चाहिए था, सर्कुलर। है क्या सर्कुलर मोशन, नहीं है। कब आएगा, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो, वेलोसिटी के डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चार्ज पार्टिकल जैसे इमिट हुआ, D2 ने अट्रैक्ट किया, स्ट्रेट लाइन में जा ही रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ने बोला नहीं, मैं तुझे स्ट्रेट लाइन में तो जाने नहीं दूंगा, तो क्या होगा, कर्वेचर, फिर कर्व होके बाहर आया। अब प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला D1 पॉजिटिव था, पार्टिकल भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वो आने देगा क्या, रिपेल होगा। इसके लिए ये अल्टरनेटिंग, हम सेटिंग ऐसा करते हैं, जैसे ही ये D2 से बाहर आया, तो सामने जो D1 पॉजिटिव था, अब हो गया नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। अब ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, और वो उसको रिपेल करेगा, ऐसा होते जाएगा। गुड। राइट, तो बाकी डिटेल अब देखेंगे कल के लेक्चर में।